Hello everyone. This video is for those students, those who are pursuing B.Ed right now and are working also. Most of the time what happens, हम अपने काम में इतने busy रह जाते हैं and all कि फिर studies और specifically materials and all collect करने के लिए उतना time हमारे पास नहीं होता है. So in that cases what we do, we normally mug up 2 or 3 days before exam and we just write and that's all like how we write in the exams and all. So I thought that this video will be helpful for those people, those who are preparing for B.Ed and those who are like appearing this time for the first time in B.Ed exam. And like in this exam, the first I have started with the first topic. The first the first unit is philosophical foundation of education, and I have tried to cover at least 4 or 5 subtopics inside that. The very first part which we will be having here is, I'm sharing the screen. The very first part which we'll have here is this is our nature, scope and importance of philosophy of education. Right. So this is the very first thing which we'll be studying in philosophical foundation of education. This is unit 1. Let me remind you that this is unit 1, and inside that we have to study philosophical foundation of education. So in this unit we would be studying introduction to philosophy and education, introduction to education, nature and scope of education, aims of education, and finally we would be studying in this unit as some committees and commission views on aims of education. So moral of the story is that in this is paper 1, and in paper 1 the unit 1 I'm trying to cover here. I'll try my best to cover at least utmost topics here. So the very first thing which I'll be covering is which is like coming in all the sessions. If you go through like 10 years or 20 years question paper, or if you'll see it, you can find that basically n number of questions comes from nature, scope and importance of philosophy of education, right? So the very first thing I have started with meaning, nature and scope of philosophy. So this slide is all about nature, scope and importance of philosophy of education. I'm again reminding you, in this unit we will be having like major 3 subtopics. Number 1, we will be dealing with nature, scope and importance of philosophy of education. Number 2 will be meaning, nature and scope of education. Number 3 major part is aims of education, which is very much essential and important too. And at last, if I can cover in this class, then it's all right. Otherwise, I'll try to cover it in the next video. That is committee and commission's views on aims of education. So let's start it. The first thing is a complete philosophy includes a worldview, a doctrine of values, meanings and purpose of human life. So whenever the question comes in exams that define philosophy or what do you understand by philosophy, so in that you can like quote this sentence, और आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि you can start that what is philosophy. So a complete philosophy includes a world view, a doctrine of values, meanings and purpose of human life. If you want to mention the name of the educationist, that also you can do. Otherwise, that you can leave. Now, definition of terms. So we will be here discussing about number 1, philosophy, then reality, then ultimate truth, then immediate truth, education and philosophy of education. Again, I'm telling you, each question comes like maximum marks is 20 marks. So maybe the question will be like, what do you understand by philosophy? Explain detail, nature, scope and importance of philosophy of education. So there we can start with this. If you want to mention any quote, आप उसको आराम से लिख सकते हो, या फिर उसके बाद आके आप directly you can jump into the definition thing. Then philosophy. So what is philosophy? Philosophy comes from the Greek word philo and sophos, which together means loves and wisdom. ठीक है? Understood from the term only. अच्छे से समझ सकते हैं philosophy किसको बोलते हैं? Philosophy is a Greek word
which comes from philo and sophos, जिसको एक साथ मिलाने से जिसका मीनिंग होता है love and wisdom, is sometimes considered as a group of theories or system of thoughts by which is sought to understand the world, its meaning and its values. So ये line भी बहुत clear है, is sometimes considered as a group of theories or system of thought by which is sought to understand the world, its meaning and its values. Next है philosophy. It is the endeavor to achieve comprehensive view of life and its meaning upon the basis of the results of various science. लाइफ के विषय में बहुत सारी चीजें समझने के लिए बहुत अच्छा मीनिंग एंड हमारे वेरियस साइंसेस अपॉन बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ वेरियस साइंस, अनयूजुअली स्टबर्न अटेम्प्ट टू थिंक क्लियरली. अगर आपको कुछ चीज समझना है तो उसके लिए आप अनयूजुअल स्टबर्न अटेम्प्ट्स लगाते हैं चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए. क्लियर? सो हमने फिलोसफी को एक्सप्लेन किया था इन द बिगिनिंग, like here also हमने explain किया था, it comes from the word philo and sophos, which together means loves and wisdom, right? And in the second thing is, it is the endeavor to achieve comprehensive view of life and its meaning upon the basis of the result of various sciences. An unusual stubborn attempt, आप याद रखिएगा ये वाला चीज जो है अगर आप लिख देते हो अपने आंसर पेपर में भी तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है. नाउ अभी साउंड फिलोसफी मस्ट टेक इनटू अकाउंट्स. फिलोसफी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल एंड दूसरा जो है वो सोसाइटी. सोसाइटी consideration of society must include that society's conceptions of good life, its more and its focaways. That is clearly understood. And individual, a conception of individual must take into account his being biological organism and a national and passionate creature. तो हर किसी का फिलोसफीज हो सकता है अबाउट लाइफ, अबाउट एजुकेशन, अबाउट थिंग्स. तो दो तरह के जनरली कैटेगराइजेशन है. नंबर वन इज इंडिविजुअल, नंबर वन इज ग्रुप. इंडिविजुअल we can easily write that what an individual think about it and how does it want to present it. And second is it's like a complete society. And बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके ही एक सोसाइटी बनाते हैं. Both society and individual are results of interactions. Then यहाँ पे अभी तीन चार चीजें हैं which is like very much important and essential. We can say that these all are the pillars of philosophy. जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि 4 pillars of philosophy क्या क्या है आप लिखो. तो very first thing I want to discuss with all of you is reality. Reality is the state of things as they actually exist, rather than as they may appear or might be imagined. Reality includes everything that is and has been, whether or not it is observable or comprehensible. A still broader definition includes that which has existed, exists, or will exist. So इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि reality ऐसी है, ऐसा नहीं है कि आपको जो चीजें दिख रही हैं या फिर जो चीजें हम समझ पा रहे हैं वही रियल है. इसके भी बहुत वाइड डेफिनेशंस रियलिटी के हो सकते हैं. रियलिटी में होता है कि जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी हैं, जो चीजें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं और जो चीजें एग्जिस्ट करेंगी. तो दिस इज अबाउट रियलिटी. नेक्स्ट है अल्टीमेट ट्रूथ. याद रखिएगा प्लीज, द वेरी फर्स्ट थिंग इज रियलिटी and the second is ultimate truth. The ultimate truth can be realized only through meditation and not theorizing or speculating. The ultimate truth in Buddhism is how things really are. हाँ, यहाँ से बुद्धिज्म से एक चीज और बहुत important चीज है which always comes into philosophy. Whenever you will be like appearing in the exam, then there is a maximum probability of questions coming from Buddhist education and Jainism. तो यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन से या फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो. जैसे कि मुझे भी याद है बुद्धिस्ट एजुकेशन में गौतम बुद्धा ने एजुकेशन को डिफाइन किया था एज लाइक एजुकेशन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सैल्वेशन. आई रिमेम्बर दिस लाइन व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएड आल्सो. सो दैट टाइम दिस लाइन आई हैव रेड इट एंड इट touched me so well that I had remembered it till now also, that
जो शिक्षा है वो मोक्ष का अंतिम चरण है, या फिर बोल सकते हो कि दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सैल्वेशन. सैल्वेशन मीन्स मोक्ष. सो they are ever changing and dependent on circumstances. The ultimate truth is that an observer sees particularly visual effects dependent on the position of the moon and earth and dependent on the observer's position on the earth. So this is ultimate truth. इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. ये अल्टीमेट ट्रुथ है कि सन वहां पे फिक्स्ड है, अर्थ उसके राउंड घूम रहा है. So these all are the ultimate truth. The things in life are temporary. If going well, enjoy it. They'll not last forever. If not going well, don't worry. They are also not going to last forever. Ultimate truth और ये ब्रह्म बुद्धिज्म में एजुकेशन से ही है. एक है परमार्थ सत्य, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीमेट ट्रुथ. And that the reality of all the objects of knowledge, the test says, is existentially comprised of the two truths. Okay, ultimate truths of Buddhism are different from the conventional truth of everyday life. This can be confusing for the thoughtful person. For instance, they might think, if there is no self theory in Buddhism, how can I write referring to myself and to others? One reason is that writing which does not refer to the self is difficult to understand. तो ये जो परमार्थ सत्य है, पहला चीज तो हमने डिस्कस किया रियलिटी, और दूसरा चीज है अल्टीमेट ट्रुथ. उसके बाद है इमीडिएट ट्रुथ. ठीक है, ये फिलॉसफीज के सारे पार्ट हैं. इमीडिएट ट्रुथ मतलब टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी बिटवीन अ कॉग्निटिव प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन डिटरमाइंस एक्सपीरियंस ऑफ द सॉल्यूशन, जिसका हम इमीडिएटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. Immediately implies the statement, it is objectively true that nothing anyone ever say is objectively true. किसी सिचुएशन के लिए मतलब गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति की थी, तो फिर उन्हें ऐसा लगता था कि जो कुछ भी है दुनिया में सब मोह माया है, और जो इंस्टेंटली हम जो सच बोलते हैं या जो सच दिखता है वो सब सच क्या होते हैं, वो इमीडिएट ट्रुथ होते हैं. इमीडिएट मतलब इसको बोल सकते हो कि जैसे बोलते हैं कि क्षणिक सच है ये. इसके पहले हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है परमार्थ सत्य. ठीक है, तो होप यहां तक हुआ. हमने शुरू में डिस्कस किया फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी के बाद भी कम टू लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिलॉसफी, उसके बाद भी केम टू रियलिटी, देन यूनिवर्सल ट्रुथ, देन इमीडिएट ट्रुथ. अभी नेक्स्ट स्लाइड, एजुकेशन. नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जाते हैं यहाँ से. ये तो डेरिवेटिव नॉलेज पे है कि 1 + 1 = 2 है, जो हमें पता है. इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ. Derivative knowledge of truth involves deduction and interference from immediate self-evident truth. So this was all about philosophy, right? This was all about philosophy, and now it came to education. But before landing to education, I want to tell you few things about education, that about philosophy, that is जैनिज्म का मैंने डिस्कस किया था. तो जैनिज्म जो होते हैं, जैन का, वो लोग भी वेदा और गॉड को एक्सेप्ट करते हैं. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जैनिज्म एजुकेशन के बारे में कुछ लिखिए, तो यू कैन राइट डाउन दैट जैनिज्म आल्सो देयर इज अ बिलीफ इन रीबर्थ एंड लॉ ऑफ कर्मा कॉन्सेप्ट. ये था, ये जो जैनिज्म में एजुकेशन का मेन था. वहां पे वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्म जो है वो आपको कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलेगा, और आपने जैसा कर्म किया है आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा फल. और जैन एजुकेशन का जो मेन पॉइंट था रीबर्थ, मतलब वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, राइट? और बुद्धिज्म एजुकेशनल फिलॉसफी के हिसाब से बुद्धिज्म system, it never accepted Vedas and God, but there is a belief in rebirth and laws of karma here also. And the question of God is largely irrelevant in Buddhism and is mainly founded on the rejection of certain orthodox Hindi philosophical concepts. So ये जो चीजें थी इनिशियली इसमें था फिलोसफी. तो आपको अगर फिलोसफी पूछा जाए कि डिफाइन फिलोसफी, नेचर, तो आप वहां से लिख सकते हो कि व्हाट फिलोसफी इज. नाउ
we are coming to education. As you all are doing B.Ed, that is Bachelor of Education. So now let's discuss our main topic, that is education. So what is education? Education is a continuous process of experiencing and of revising or reorganizing experience. Dr. John Dewey. See, this John Dewey name, I'm telling you in the very beginning, इनके इतने थ्योरीज हैं और इतने इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं कि आपको वो पूरा बिट बाय बिट पढ़ना पड़ेगा. लगभग 5 तो ऐसे थ्योरम होंगे जो एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे. तो इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग भी किया है जॉन डवे की थ्योरी से ही. एंड एजुकेशन इज अ कल्चरल प्रोसेस बाय विच सक्सेसिव जनरेशन ऑफ मैन टेक देयर प्लेस इन हिस्ट्री. इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं कि व्हाट एजुकेशन एग्जैक्टली इज. आपको सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, आप एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर खोलते हो और आपको पहला क्वेश्चन आता है व्हाट एजुकेशन इज. Define the scope and nature of education. Define the they may ask that what is the aim of education. So this would be the most possible and what we can show that short question which you could be giving, which you could be getting. So here Webster याद रखिए, Webster भी एक ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिनके काफी थ्योरम्स आपको आएंगे और उनका लिखना पड़ेगा. तो जब आप आंसर लिखते हो और ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखते हो और उसके साथ किसी भी मतलब ऑथर या फिर उनका आप अगर नेम मेंशन करके उनका स्टेटमेंट लिखते हो तो आपका स्कोरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत बढ़ जाता है. तो वेबस्टर ने डिस्क्राइब किया था कि एजुकेशन इज द सम ऑफ ऑल इक्विटीज एक्वायर्ड थ्रू इंडिविजुअल मैच्योरेशन एंड सोशल ट्रेनिंग. तो इसके लिए कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता है, आपको 2-3 फेमस कोट याद रखने पड़ेंगे. जैसे कि मैंने 7-8 इयर्स बैक पढ़ा था व्हाट एजुकेशन इज एंड मैंने महात्मा गांधी का कोट याद करके रखा था, जैसे कि वो था एजुकेशन इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स माइंड बॉडी एंड सोल. ये वाला कोट जो है कि वो अभी भी याद है. एंड whenever I write the answers also, then I start like this. Even there is a saying that if you have to burn the another lamp, if a candle has to burn the another lamp, then it has to keep its own flame burning, right? So this is how an educationist or a teacher has to be. If he has to deliver the knowledge, then he has to keep himself updated also. So education is the sum of all equities acquired through individual maturation and social training. So आप अपने maturity से और socially trained होके आप जो कुछ भी सीखते हो और जो कुछ भी gain करते हो वो education है. Now philosophy of education देखते हैं. Philosophy of education, हाँ, educational philosophy. यहाँ पे we can discuss this that philosophy of education gives direction and points of destination to the teachers, administrators, and supervisors in formulation their educational aims and objectives to be achieved. In selecting and organizing objects matter to be taught. और अगर आपको पूछा जाए एजुकेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे तो आप अपना कितना कमांड है आपका लैंग्वेज के ऊपर और कितना अच्छा आप लिख सकते हो, आप उस बेसिस पे भी एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हो. जैसे कि एजुकेशन इज अ वेरी वाइड concept. It cannot be squeezed in word or sentences. It is like a diamond which appears to be a different color when seen from a different angle. Like the concept of the proverbial elephant, right? You might have heard about proverbial elephant. So described by a blind man, an artist, a biologist, an economist, an educator, a philosopher, कोई political leader ले लो आप, कोई psychologist ले लो, कोई sociologist ले लो, तो हर कोई उसको अपने अपने तरीके से define करेगा. So it is not something very narrow concept कि भैया मैंने आपको ये वाला concept बता दिया है, ये लाइन आपने लिख देने हैं, बस आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा. ऐसा नहीं, ये आपकी समझ पे है. इट डिपेंड्स ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, राइट?
एक और था, एक स्टेटमेंट है एजुकेशन का, आई कैन सजेस्ट कि आप 5 स्टेटमेंट्स एटलीस्ट याद करके रख लो, जैसे जॉन डेवे का हो गया, फिर उसके बाद वेबस्टर का हमने किया, महात्मा गांधी का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद एक और है प्लेटो का मैंने पढ़ा था, just one second. Plato says education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. तो ये आपको याद रह जाएगा कि प्लेटो ने कहा, क्या कहा था, प्लेटो तो प्लेजर भी है और पेन भी है, तो PLATO प्लेटो, वहां से आप रिमेंबर कर सकते हैं कि प्लेटो में क्या है, प्लेजर भी बोला था और पेन भी बोला था। तो इट डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द पीपल all the beauty and all the perfection which he is capable of. तो आई थिंक ये प्लेटो वाला एग्जाम्पल अच्छे से आपको याद रह जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन, दैट व्हाट एजुकेशन इज एंड आप एजुकेशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो पहला चीज हमने फिलोसफी का किया, उसके बाद लाइक एजुकेशन का किया। बिफोर लैंडिंग टू एम्स ऑफ एजुकेशन आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल यू दैट एजुकेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंशियंट और इंडियन व्यू क्या है एजुकेशन का। जब बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो गुरुकुल परंपरा थी, लोग जाते थे वहां पे रहते थे, उनको भी शिक्षा मिलती थी। तो यू कैन राइट that also, that term siksha, right? The term siksha is derived from the Sanskrit verbal root shas, which means to discipline, anushashan, right? To teach, to instruct or to control. तो आप क्या क्या याद रखेंगे, शिक्षा, शिक्षा जो है वो डिराइव्ड हुआ है संस्कृत वर्ड से शास। जब हम अनुशासन बोलते हैं तो वहां पे डिसिप्लिन आता है, कंट्रोल आता है, इंस्ट्रक्शंस आता है। तो इसको लेके हम क्लियरली कह सकते हैं कि अपने माइंड को डिसिप्लिन करना, इंस्ट्रक्शंस देना, दीज ऑल आर ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशन। तो एक वर्ड तो आपको याद रह जाएगा शिक्षा। दूसरा आप इंडियन व्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको एज विद्या। शिक्षा, विद्या। विद्या इज इक्वल द टर्म एजुकेशन is also derived from the Sanskrit verbal word vid. Vid का मतलब होता है to know. Does the word vidya really means knowledge, जानकारी? ठीक है, तो पहला वर्ड आप इंडियन सिस्टम में एक्सप्लेन करोगे तो पहला वर्ड आपने बोल दिया शिक्षा, दूसरा हमने बोल दिया विद्या। नाउ थर्ड इज संस्कार। So the term sanskar, which is equal the term education also, can be seen general way in India. Samyak akaram iti samskaram, which means आप किस सम्यक आकारम इति संस्कारम, आकार मतलब शेप, आप किसी चीज को, किसी भी इंडिविजुअल को आप उसको प्रॉपर शेप दे रहे हो। आपने देखा होगा कुम्हार अपना मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो पहले अपने हाथ से उसको घड़े बनाने हैं, दिए बनाने हैं, बाल कुछ भी बनाना है तो वो उसको अपने हाथ से वो शेप देता है। तो एजुकेशन भी उसी तरीके से है, ये जो संस्कार है ये भी वही है, ये हमें एक तरीके से एक शेप देता है, परफेक्ट शेप, जिसमें हम एक साथ उस चीज में रह सकते हैं। ये हमको मॉडिफाई करता है, या फिर बोल सकते हैं कि जंगली से पालतू बना देता है ना। तो इस तरह से है। और आप एजुकेशन को एक तरह से बोल सकते हैं कि जब मैंने कहीं पे पढ़ा था, शेयर करना चाहूंगी, इट वाज समथिंग लाइक आपका जब बर्थ होता है ना तो देन वी स्टार्टेड लर्निंग, right? So education is a process which starts from mother's womb. It starts from mother's womb till tomb, right? Or we can say that मतलब वो किसी अपनी मदर के कोख से लेकर के आप जब तक अपने मकबरे तक जाते हो तो वहां तक का आपका जो जर्नी है, जो पाथ है, वो आपकी शिक्षा कवर करती है। उसके बाद आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि इट इज द लर्निंग विच इज हैपनिंग थ्रू क्रैडल टू ग्रेव। एक झूले में भी एक बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप देखोगे जब एक बच्चा झूले में सोया रहता है और उसकी माँ अगर दूर रहती है और उसके ऊपर में एक अगर कुछ बांझ देते हैं, एक झुनझुना टाइप का, तो उस बच्चे को भी पता होता है, वहां भी वो अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करता है कि उसने अगर उसको बजाया तो उसकी मम्मी उसको देखने आएगी।
तो यहाँ से भी एक बच्चा सीख रहा है फ्रॉम एक झूले से लेकर के ए टिल फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव वी कैन सी. सो दिस इज ऑल्सो एजुकेशन. सो ये जो क्वेश्चंस हैं फिलोसफीज और एजुकेशन के, तो जब वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो इट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. आपने कितना समझा है, कितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कितने अच्छे से आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो. बस कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रख लेने हैं, जैसे कि जॉन डेवे का एक्सप्लेनेशन, वेबस्टर का, महात्मा गांधी का, प्लेटो का, खुद अपना भी कुछ. तो उस तरह से बोल करके आप एजुकेशन को डिफाइन कर सकते हैं. शंकराचार्य ने भी बोला था कि एजुकेशन मीन्स द रियलाइजेशन. एजुकेशन का मतलब होता है रियलाइजेशन. ठीक है. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑल्सो. मैं एक चीज और बिफोर ये लाइक वीडियो खत्म करने के पहले बस आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देना चाहती हूँ, जो कि फॉर श्योर आता ही है एग्जाम में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, राइट. तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन होते हैं. पहला होता है इनफॉर्मल, दूसरा होता है फॉर्मल और तीसरा होता है नॉन फॉर्मल. सो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जो कि घर और सोसाइटी से हम सीखते हैं. द प्रेस, द लाइब्रेरीज, द फिल्म्स एंड अदर सच एज एजेंसीज. इनफॉर्मल हो जो औपचारिक शिक्षा. उसके बाद एक शिक्षा होती है फॉर्मल. फॉर्मल एजुकेशन जो होते हैं वो डेलिबरेटली प्लान करके होते हैं. स्कूल, कॉलेजेस और कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. और तीसरा होता है नॉन फॉर्मल. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज एन अरेंजमेंट वेरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज द की वर्ड. यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जाता है और उसके बाद आपको वहां पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं. लाइक द गुड एग्जाम्पल वी कैन से इट this one, this IGNOU, open distance learning. These all are the things which is an example of non-formal education. So इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है. होप आप लोगों को समझ में आए. उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम एम्स ऑफ एजुकेशन और फंक्शंस डिस्कस करेंगे. आई होप इतना अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी यू मस्ट हैव गॉट कि आप अच्छे से अपना आंसर्स लिख सकते हो. थैंक यू सो मच. अगर सही लगा, इफ यू लाइक इट, please like and subscribe my channel. Thank you.